हाय, आई एम कुणाल रागिनवार। तो आज हम एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इट इज़ नोन एज डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस, मैं इंडिकेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्जेंस की बात कर रहा हूँ। तो वील हैव अ लुक एट दैट टुडे। बिफोर आई स्टार्ट, प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो नाउ, वेलकम टू द गेम चेंजर्स। So what we're going to have a look at is on the daily chart. We are just going to find, this is Nifty 50 here. So I'm going to do this. See, this is Nifty, this is Bank Nifty, right? This is the Bank Nifty chart. This is the Nifty chart. I'm going to put both as spot prices so that we can analyze prior data. Now, a divergence means something जो ऑपोजिट चल रहा है, जो इन सिंक नहीं है। मतलब क्या? दिस इज द बैंक निफ्टी, दिस इज द निफ्टी, दे बोथ हैव टू बी इन सिंक, दे शुडंट बी ऑपोजिट और गिविंग वेरी डिफरेंट सिग्नल्स। ये क्या, वॉट इट इन, वी आर गोइंग टू सी फॉर एग्जाम्पल इन रिसेंट टाइम्स दिस वॉज अ डाइवर्जेंस, दिस वॉज अ बिग फॉल विच ब्रोक this previous low, right, in Nifty. Have a look at what has Bank Nifty done. Bank Nifty is a fall तो आया, but ये same previous low यहाँ पे था, which I have marked in Nifty. Can you see this point? So this tends to give a big move in the making. ये big move in the making कहाँ पे और कौन से direction में आएगा, ये हम फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं। हम अपना माइंडसेट रेडी कर रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है। सो एंड दीज डाइवर्जेंसेस इन द मार्केट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी आई हैव ऑलरेडी सीन अनदर divergence here. I will show it to you. So you try and find out with me if you can spot it. Can you see this? Price is going up यहाँ पे, while in Bank Nifty price has made a lower low. This is the same time duration, okay? At the same time, Nifty has gone up while Bank Nifty has gone down. That is why a big move comes. ये big move नीचे भी आ सकता था, तो we have to be prepared that a big move is going to come. उसके बाद let's see, let's find another move. This is not a divergence. There is no divergence here. If you can spot any other divergences, please text or message in the comment section. Have a look at this. ये बैंक निफ्टी यहाँ से यहाँ तक जाता है. निफ्टी at the same time does this. This is the same time. This is a divergence. Although it is same direction, this is flat, this is trending. उसके बाद बैंक निफ्टी एक हायर लो बना दिया. It has not broken this low, while Nifty has made a lower low at the same point. So a trending move in Nifty is possible, not in Bank Nifty. Now, where else can we see obvious divergences? See, this is a very obvious divergence. ये देखो आप, निफ्टी में एक हायर लो बन रहा है एंड उसके बाद एक हायर हाई बना. सेम टाइम में बैंक निफ्टी में एक लोअर हाई बना, राइट. दिस इज द सेम टाइम स्टैम्प दैट आई हैव मार्क्ड, अगस्त. सो दिस हाई इज ऑन 29 जुलाई and on the same chart on Nifty also it is 29 July. Can you see the difference here? This tends to a big move here on the downside, but also this tends to make a big bottom. तो ये हमको फाइंड आउट करने हैं कि डाइवर्जेंस हो रहा है, तो लेट्स बी रेडी एंड प्रिपेयर्ड. सी, दिस इज अनदर क्लासिक डाइवर्जेंस वेयर प्राइस यहाँ पे लोअर हाई बना रहा है कंपेयर टू दिस हाई. But what Nifty has done is Nifty has made a higher high.
So this tends to give a trending move in some direction or the other, and we have to take advantage of it and we have to be prepared. Have a look at this. From this bottom, Bank Nifty has gone up, एक higher low बना दिया, and then a big move has come. What has Nifty done? Gone up, same time it has gone again up, and then even higher. Can you see? This is what I'm talking about. This is a significant divergence. ये थोड़ा सा टाइम लगेगा स्पॉट करने को, बट आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल. सी दिस Bank Nifty makes a higher low and then heads up higher, while Nifty at the same time makes a lower low and then heads up higher. ये जो डाइवर्जेंस है ये बोलता है कि कुछ अलग चल रहा है मार्केट में and we want to take advantage of it. So I'll give you another great divergence that I think I had seen. See, because this is what I had traded. Have a look at this. ये टाइम पीरियड से एट दिस टाइम बैंक निफ्टी स्टार्ट्स गोइंग अप वाइल निफ्टी एक्चुअली स्टार्ट्स कमिंग डाउन. कैन यू सी? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. ये कुछ अलग चार्ट कर रहे हैं, दोनों मेजर इंडाइसेस हैं एंड एग्जैक्टली कुछ अलग कर रहे हैं. दे आर नॉट इन सिंक. ओके, सो आफ्टर दैट अ बिग मूव की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है. नाउ वी हैव सीन सो मेनी केसेस ऑफ डाइवर्जेंस ऑन अ डेली टाइम फ्रेम. ये काफ़ी बार वीकली टाइम फ्रेम पर भी है. आई विल गिव यू अ एग्जाम्पल. अभी आप वीकली टाइम फ्रेम पे टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी ने तो हायर हाई किया है. क्या निफ्टी ने हायर हाई किया है अभी तक? नो, निफ्टी हैज स्टिल नॉट ब्रोकन दिस हाई. दिस इज अ डाइवर्जेंस. क्या ये ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, ये दैट टाइम विल टेल. बट वी हैव टू बी अलर्ट कि वीकली टाइम फ्रेम पे एक बड़ा ट्रेड मिल सकता है, एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू कैच. You know, have a look at this divergence कि बैंक निफ्टी ने तो निफ्टी ने सब लोज तोड़ दिए यहाँ पे, बट बैंक निफ्टी ने ये जो लो था वो तोड़ा ही नहीं. नॉर्मली लोग क्या देखते हैं? नॉर्मली लोग ये टाइप ऑफ डाइवर्जेंस देखते हैं. ये देखो, प्राइस मेक्स लोअर लो व्हाइल इंडिकेटर मेक्स हायर लो. ये वाला डाइवर्जेंस नॉर्मली देखते हैं. मैं ये नहीं देखता. I try and keep price as first priority. उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है. But that is what I try and do. I'm going to tell you the difference between जो normal divergence लोग देखते हैं और मैं जो देखता हूँ, but with examples. ठीक है, with stock के examples I'm going to show with the type of divergence that I look at. निफ्टी में हम लोग ने देखा था, इफ़ यू वॉन्ट टू सी अ नॉर्मल डाइवर्जेंस ना, ये मैं एक इंडिकेटर ड्रॉ करूँगा विच इज़ नोन एज RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. ये बहुत लोग यूज़ करते हैं एंड इट इज़ अ गुड इंडिकेटर, राइट? देयर इज नो बैड इंडिकेटर और समथिंग. बट ये आपको दिख रहा है, ये नॉर्मल डाइवर्जेंस है. ये इंडिकेटर देखो आप, लोअर हाई बना रहा है वाइल प्राइस इज मेकिंग अ हायर हाई. ठीक है, वापस इंडिकेटर हायर, मतलब प्राइस हायर हाई बना रहा है, इंडिकेटर लोअर हाई बना रहा है. फाइनली प्राइस हायर हाई बना रहा है, इंडिकेटर लोअर हाई बना रहा है. सो अगर आप देखा जाए, यहाँ पे भी एक आपको डाइवर्जेंस दिखता होगा. दिस इज कॉल्ड अ बेरिश डाइवर्जेंस. प्राइस इज मेकिंग अ हायर हाई, इंडिकेटर इज मेकिंग अ लोअर हाई. तो ये चीज़ मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि
एक अप ट्रेंड में मेरे को टॉप पकड़ने की जरूरत नहीं है, राइट? दिस बेरिश डाइवर्जेंस इन एन अप ट्रेंड, ये एक आइडिया होता है टॉप पकड़ने का, बट दैट इज नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। तो आई एम अ ट्रेंड प्लेयर और मैं डाइवर्जेंस ऐसे देखता हूं कि कुछ अलग हो रहा है। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू टेक अ स्टॉक एग्जाम्पल नाउ। हैव अ लुक एट दिस। यहां निफ्टी पे ये देखो क्या कर रहा है। निफ्टी यहां पे नीचे जा रहा है, राइट? बट सेम एरिया में ये स्टॉक तो ऊपर जा रहा है। सो दिस इज व्हाट आई लाइक टू बाय, राइट? एंड दिस इज द trade. So when you look at the the returns, it is quite significant in a short duration, 18 to 19% for such a small kind of divergence. Okay, we'll have a look at another divergence on a daily time frame. So I know these examples because I have traded them and they are in the past, so I can talk about them. Have a look at this. निफ्टी में ये देखो, ये नीचे जा रहा है एंड इट इज ब्रेकिंग दिस प्रीवियस लो, राइट? इट इज गोइंग डाउन. Look at what this stock does. In the same period, this is going up. This has not come down. So that is why this happens. This next move happens because of that. Can it fail? So it is around 60% returns. Can it fail? Of course it can. But this is where I am trying to find out some kind of difference. कि मार्केट गिर रहा है तो मैं ढूंढूं जो ऊपर जा रहा है, ठीक है? आई एम नॉर्मली नॉट अ पर्सन हु शॉर्ट्स द मार्केट, सो आई डोंट हैव शॉर्ट एग्जाम्पल्स. आई डोंट लाइक शॉर्टिंग स्टॉक्स एंड आई डोंट डू इट. आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड इंडियन बैंक ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम. एंड आप मेरे को बताओ, अभी मैंने दोनों टाइम फ्रेम वीकली पे बताया, क्या आपको किधर भी ये डाइवर्जेंस दिख रहा है? आई थिंक यू मस्ट हैव नोटिस्ड. सी, प्राइस इज कमिंग डाउन, राइट? बट यही टाइम में ये स्टॉक तो ऊपर जा रहा है, राइट? इन अ सिमिलर टाइम फ्रेम this price is going up while this is coming down. So it is a big divergence, right? And the returns here are something extraordinary because ये weekly time frame पे है तो weekly Dow theory खेलेंगे. तो if you look at the returns, they are actually 177% if the weekly Dow theory is broken, which is very high. ठीक है? So why I am giving such examples of divergence, so that आपको भी थोड़ा सा क्लैरिटी मिले कि मैं कैसे दिखता हूँ. कि मतलब मैं मार्केट तो देखता हूँ, बट मार्केट के साथ स्टॉक्स भी देखता हूँ कि कौन से स्टॉक्स डाइवर्ज कर रहे हैं, मतलब कौन से स्टॉक्स बहुत ही अलग कर रहे हैं. एंड अ डिस्क्लेमर, these are not recommendations or this is not to entice you कि आप ये देखो, but I look at stocks only for the long side, only for the buy side. I do not look at shorting stocks. I don't believe in it and I don't try to do it. I can short the index but I cannot short stocks. Okay, chalo, bye.